तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 150 कार्नियाँ जो आप तक ट्रांसप्लांट कर दी हैं, तो इसकी सेलिब्रेशन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। मेरे एक दोस्त हैं उस्मान मलक कश्मीरी साहब, ये जो नेशनल फूड वाले हैं, वाह, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कोई मसला नहीं है। उन्होंने उसी वक्त वो कंपनी जो ये इंस्ट्रूमेंट देती थी उनको पैसे दे दिए और हमें वो सेट मिल गए और हमने वो सक्सेसफुल 3 कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दी। खालिद अजीज लोन साहब का बहुत किरदार है हमारे रीनल ट्रांसप्लांट में भी, क्योंकि उन्होंने हमें थिएटर भी बनवा के दिया जी। और युरादो जी को बहुत अपग्रेड करने में खालिद अजीज लोन साहब का बहुत ज़्यादा किरदार है। तो यासिन जोया साहब जो कि श्रीलंका के आज़ादी कौंसलर हैं जी, ही इज़ वेरी काइंड, वो तशरीफ लाए और एक MOU साइन हो गया कि श्रीलंका से रेगुलरली जो कॉर्निया आते थे, जो पहले वो लाहौर में म्यो हॉस्पिटल में और इस तरह की चीज़ों में दे देते थे, तो उन्होंने कहा जी अब इसमें से एक हिस्सा गुजरांवाला के लिए भी रखा जाएगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਵੇਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਲਮ ਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ YouTube ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਲਾ ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਮੇਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਔਰ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਗੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਵੇਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸ਼ੁਰੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋੜ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਢੇਰ ਢੇਰ ਸਲਾਮਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੋ ਅਦਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਫਰੋਗ ਤੇ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੇਲਾ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਲਾ TV ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੱਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਅੱਪੜ ਸਕਣ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੇ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਮੂਜਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਬੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਖਾਰਨ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੇ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਆਰ ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਇਮਰਾਜ਼ ਚਿਸ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਕਯੂਮ ਮਲਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਬੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਬੀਨਾ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਤੇ ਆਵਾਮ ਪਰਵਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ 150 ਨਾਬੀਨਾ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਮਰਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਵਡੇਰੇ, ਮਾਈਆਂ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਈ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ MS ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਕਾਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਨੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ, ਐਲਬੋਜ਼ ਕੋਹਣੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਬੀਨਾ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਰਨੀਆਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਕਯੂਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਬੀਨਾ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਨੀਆਜ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪੁਤਲੀਆਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਾਬੀਨਾ ਸਨ, ਅੰਧੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਝਦਾ, ਦਿਸਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 150 ਨਾਬੀਨਾ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਈ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਭਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਨ ਇਸ ਕਾਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਧਾਪਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਬੋ ਜਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਾਹ ਕਰਮ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾਏ ਇਮਰਾਜ਼ ਚਿਸ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲ ਘੱਲੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਈਸਾਈਟ बहाल हो गई हुई है। जी, मुझे केराटोकॉर्निस का मसला था।
जी। और बचपन ही से मैंने जब बोर्ड करना शुरू किया तो एक आंख से मुझे बहुत कम नज़र आता था। अच्छा। तो मैंने अपनी वालिदैन को बताया कि मुझे एक आंख से बहुत कम नज़र आता है। जी। तो उन्होंने मतलब कि जो मुकामी शहर वहीं के डॉक्टर को चेक करवाया, उनको ही चेकअप करवाया, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसको इसमें से नज़र नहीं आता और इसकी नज़र अब बेहतर नहीं हो सकती, अब इसको इसी तरह रहना पड़ेगा। हम बहुत परेशान हुए और साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी, लेकिन पढ़ाई में भी बहुत मुश्किल होती थी, एक ही आंख पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता था। जी। तो फिर इसी तरह फिर हमने एक दफ़ा फिर इसे चेकअप करवाया, जब मतलब कि ज़्यादा ही मसला ये वाली आंख भी इसकी वजह से बहुत इसकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो गई। तो फिर चेकअप करवाया तो फिर एक डॉक्टर ने बताया कि आपकी तो ये केराटोकॉर्नियस का आपको मसला है, तो आपकी ये जो कॉर्निया है ये ट्रांसप्लांट होगा। तो फिर हम इस सिलसिले में काफ़ी जगह गए, मतलब कि समझ नहीं थी आती कि कहाँ पे जाएं, कोई कहीं बताता था, कोई कहीं। फिर इसी तरह पता करते करते मतलब 2-3-4 साल गुजर गए। तो फिर उन्होंने बताया, किसी ने डॉक्टर इरफान क्यूम मलिक के बारे में बताया कि ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर और बहुत ही स्पेशल और मतलब कि बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। जी। तो हम फिर यहाँ पे आए तो माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ही अच्छा तावन किया। डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने कहा कि बेटा आपने फ़िक्र नहीं करनी, आपको हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करेंगे और आपको फिर से वैसा ही नज़र मतलब कि जैसे बहुत ही अच्छा नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपका अच्छा ट्रीटमेंट होगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको कॉल करेंगे। फिर कुछ ही दिन, अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि इनकी कॉल आ गई और हम यहाँ पे एडमिट हो गए। फिर जुमे वाले दिन हम एडमिट हुए और हफ्ते वाले दिन इन्होंने ऑपरेट किया और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा तावन किया, बहुत ही अच्छे इखलाक से। जैसे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इन्होंने फिर भी बहुत ही अच्छे इखलाक से, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब के इखलाक बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ऑपरेट किया। और माशाल्लाह से अब मेरी आँख मतलब कि अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा नज़र आना शुरू हो गया। आई साइट आपकी अब बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक हो गई है। और अभी मैं- आप पढ़ सकती हैं माशाल्लाह। जी बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी आपको और बेहतर नज़र आएगा। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुर्रहमान वकास, आई स्पेशलिस्ट हैं और यहीं खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के शोबाए इमराज चिश्म में। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ ये बताएं कि ये जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती है जी। ये क्या है? जी, इसमें समझना बहुत ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए। अगर हम सामने से किसी को देखें तो हमें आँख के 2 हिस्से नज़र आते हैं। एक जो सफ़ेद हिस्सा है, एक काला हिस्सा है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। जी। बेसिकली जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है वो उस हिस्से की ब्लाइंडनेस की वजह से होता है। मसलन ये है कि किसी को चोट लग गई तो वो हिस्सा बिल्कुल सफ़ेद हो गया, या कोई इन्फेक्शन हो गया, या कोई केराटोकोनस हो गया, जिसमें सिर्फ कॉर्निया इन्वॉल्व होता है, बाकी उसका पीछे से नूर का पर्दा रेटिना बिल्कुल ठीक होता है, उसको कोई ग्लाकोमा नहीं होता। उसमें जो है वो हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 150 कॉर्निया जो अब तक ट्रांसप्लांट कर दी हैं, तो इसकी सेलिब्रेशन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अलीना अहमद, जो कि गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के शोबाए इमराज चिश्म की रजिस्ट्रार हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो आँखों का कॉर्नियल का ट्रांसप्लांटेशन होता है, ये सर्जरी कैसे की जाती है? जी डॉक्टर साहब, आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आप इसको किस तरह इसकी सर्जरी करते हैं और फिर कौन सी लेयर की करते हैं? हमारे पास बहुत सारे मरीज़ इस तरह के आते हैं जिनकी आँख के अगला जो काला हिस्सा है, जिसको कॉर्निया कहते हैं, उस पर चोट लग जाती है। चाहे उसमें किसी किस्म का ज़ख्म हो या अमूमन कोई किसी किस्म का चीरा आ जाए, उसके बाद उसकी जो नॉर्मल शेप होती है वो ख़राब हो जाती है और वो हिस्सा बहुत अहम होता है दिखने के लिए। तो जिन मरीज़ों का कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है, उन मरीज़ों में हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं, बशर्ते के पीछे से उनका रेटिना, जिसको हम नूर वाला पर्दा कहते हैं, वो ठीक हो। अगर उनका पीछे से रेटिना ठीक है तो हमारे पास जो पुतलियाँ हम लोग को डोनेशन में आती हैं श्रीलंका से, अमेरिका से, वो हम लोग मैच करके ऑपरेशन के दौरान मरीज़ का कॉर्निया उतार के, जो कि डिजीज़ है, अफेक्टेड है या ख़राब है, उसको उतार के उसकी जगह हम लोग डोनर कॉर्निया को लगा के टांगों से स्टिच कर देते हैं। और ऑपरेशन के बाद हमने बेशुमार ऐसे मरीज़ देखे हैं जिनकी नज़र बिल्कुल बेहतर हो गई है, जिनको पहले बिल्कुल नज़र नहीं आता था, ऑपरेशन के बाद उनकी नज़र बिल्कुल बेहतरीन हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है और लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि वो लोग अगर अपना कॉर्निया डोनेट करें, क्योंकि ऐसे बेशुमार बच्चे हमारे पास मौजूद हैं जो कि आँख में चोट लग गई तो उसे पूरी ज़िंदगी के लिए आगे उनकी बेनाई आ चुकी है। सो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है सबसे कि काइंडली जितना कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं करें, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 150 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सेरेमनी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें पीपल ऑफ गुजरांवाला का बहुत अहम किरदार होगा अगर वो आगे शाना बशाना होकर हमारे साथ इस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट करें। थैंक यू।
ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ جو ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے یا انفیکٹڈ ہوتا ہے وہ کارنیا جو ہے اس کو تو آپ ٹرانسپلانٹ اس کا کر دیتے ہیں, جی. اس کی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے. جی آپ یہ براہ کرم بتائیں کہ جو ریٹنا ہے اگر وہ کسی کا ڈیٹیچ ہو جاتا ہے جی تو اس کا بھی کہتے تو ہیں کہ اب اس کا پورا پراپر ہے ٹریٹمنٹ پاکستان میں. سر ریٹینل ڈیٹیچمنٹ اگر اکھڑ گیا ہے ریٹینا, ہاں. ٹریٹمنٹ تو ہے, سرجری تو ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں کارنیل ٹرانسپلانٹیشن کی. اچھا, جن مریضوں کا ہم نے کارنیا بدلنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان میں آگے سے ان کی نظر بہتر ہو, ان مریضوں کا پیچھے سے ریٹینا کا ٹھیک ہونا اہم ہے. اگر ان میں ریٹینا کا مسئلہ ہے تو ہم لوگ ان کو نہیں ٹرانسپلانٹ کرتے, کیونکہ ہمیں پتلیاں بہت مشکل سے ملتی ہیں. جو بات میں نے پہلے کی کہ پاکستان میں لوگ دیتے نہیں ہیں, باہر سے آتے ہیں, تو ہم مستحق لوگ ان کو ضرورت ہے جن کا ریٹینا پیچھے سے بالکل سیکیور ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کو پہلے لگاتے ہیں تاکہ ان کی نظر فوراً سے بحال ہو جائے. جی زبردست. اچھا تھوڑا سا یہ بس بتا دیں کہ کون سے پیشنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے اس پہ شرائط پہ پورے اترتے ہیں جن کو پھر آپ رجسٹر کر لیتی ہیں؟ اس میں بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جیسے کہ جن کی آنکھوں کو پس پڑی, اس کے بعد سفیدی آگے آ جاتی ہے ان کی کارنیا میں. اس کے علاوہ کچھ ایسے بچے جن کو آنکھوں کو چیرا آ گیا اور اس میں بھی ایک آگے وائٹ سا کوئی اوپیسٹی سی بن جاتی ہے. اس کے علاوہ کریٹوکونس ایک بیماری ہے جو بچوں میں الرجی کی وجہ سے آنکھوں کو ملتے ہیں اور اس میں آنکھ کی پتلی تھوڑی سی شیپ اس کی بدل جاتی ہے. یہ عموماً زیادہ تر مریض ہمارے پاس آتے ہیں بشرطے کہ ان کا پردہ پیچھے سے ٹھیک ہو, جو کہ عموماً ٹھیک بھی ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو ہمارے زیادہ تر کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم لوگ یہ وجہ اس میں کوئی ایج فیکٹر تو نہیں کہ 100 سال سے 80 سال یا 70 سال سے اوپر نہیں, نہیں ہمارے پاس ایسے بھی اولڈ ایج مریض آئے ہیں جو کہ 70 کے اراؤنڈ ہوتے ہیں اور ان کا ہم نے کارنیا چینج کیا اور ماشاء اللہ 1 ہفتے کے اندر بہت نظر بہتر ہو گئی ہے. سو ایج فیکٹر نہیں ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پردے میں کتنی جان ہے. پردہ ٹھیک ہے, ہمارے پاس اگر پتلی ہے تو مریض کیا کرے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ میڈیکل کالج کے شعبہ امراض چشم کے سینئر رجسٹرار ڈاکٹر اسامہ اقبال. آئیے ان سے یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ڈونیشنز آتے ہیں سب سے بڑا سورس کیا ہے, سب سے بڑا ڈونر کون ہے. ہمیں تو آج تک یہی پتہ ہے کہ سری لنکا سے آتے ہیں, لیکن ڈاکٹر عرفان صاحب بتا رہے تھے کہ امریکہ سے بھی آتے ہیں. جو کارنیا ہے وہ ابھی تک آرٹیفیشیل کارنیا ہیومنس نے نہیں بنایا. تو کارنیا جو لوگ فورس ہو جاتے ہیں ان کا ریٹریو کر کے جی, جو لوگ جنہیں ضرورت ہو, جنہیں کارنیا کی وجہ سے بلائنڈنس ہو, ان کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. تو کرنٹلی ابھی ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی آرگن ڈونیشن کا کنسیپٹ اتنا زیادہ پاپولر نہیں ہے. جی, اگر ہم یو کے, کینیڈا, امریکہ, ایون مڈل ایسٹ کے بھی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو وزٹ کریں تو وہاں پہ جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے جو باڈی وائٹل آرگنز ہیں جیسے اس میں کارنیاز ہو گئے, ہارٹ ہو گیا, لنگز ہو گیا, وہ وہاں کی اتھارٹیز ان کو ریٹریو کر لیتی ہیں اور جن لوگوں کو ان کی ضرورت ہو ان کو وہ پہ ٹرانسپلانٹ کر دیتی ہیں. ان کی پھر جو بھی بیماری ہو وہ اس سے صحت یاب ہو جاتی ہے. تو کرنٹلی ہم جو کارنیاز ہیں وہ سری لنکا ہمارا جو دوست ملک ہے وہ ہمیں بھیجتے ہیں. امریکہ میں جو پاکستانی ڈاکٹر کمیونٹی ہے وہ ہمیں بھیجتے ہیں. تو ہمارا فیوچر پلان ہے کہ ہم گجرانوالہ کے شہر میں کارنیل بینک اسٹیبلش کریں جہاں پہ ہم یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو ہم موٹیویٹ کریں اور اس میں جو ہم اسلامک اسکالرز ہیں اس کو بھی ہم انرول کریں کہ وہ لوگوں کو اس کے بارے میں مذہبی لحاظ سے بھی گائڈ کریں کہ فوت ہونے کے بعد اگر ہماری آنکھیں ہم کسی کو عطیہ کر دیں اور کسی نے بینا بندے کو یہ دنیا نظر آنی شروع ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ثواب ہمیں ایون فوت ہونے کے بعد بھی ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہوتے ہیں ذیابیطس کے مریض جنہیں ہم ڈائبیٹک کہتے ہیں یا اور کچھ ایسی امراض کے کچھ ایسے بتائیں نا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کارنیاز ہم نہیں لیتے یا لے لیتے ہیں ان کے بھی. کارنیا ڈونیٹ کرنے کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈائنگ پیشنٹ وہ اس کا ہمیں ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس سی, HIV اس کا اسٹیٹس پتہ ہو, وہ پیشنٹ کو ڈرگ ابیوزر نہ ہو, ہیلدی پیشنٹ ہو, تو ان پیشنٹس کا کارنیاز ہم جو لیونگ پیشنٹس ہیں ان کو لگاتے ہیں تاکہ وہ ان کی زندگی میں زیادہ دیر تک کام کر سکیں اور وہ ٹرانسپلانٹ کے بعد وہ جو ریسیپینٹ ہے اس کے لیے کوئی پرابلم وغیرہ اس کے لیے نہ کریے یا اس کو کوئی بلڈ بورن ڈیزیز ٹرانسپلانٹ کی وجہ سے نہ. تو جو ڈونیٹ کرنے والا ہے اس کا بھی ہیلدی ہونا ضروری ہے اور جو ریسیپینٹ ہے اس کا بھی ہیلدی اس سینس میں ہونا ضروری ہے کہ وہ اس کا زخم آپریشن کے بعد اچھا بھرے, اس کی ہیلنگ اچھی ہو اور اس کی جو باڈی ہے وہ ٹرانسپلانٹڈ گرافٹ کو ایکسیپٹ کرے. تو یہ ایک بہت لمبا عمل ہے. اس میں پیشنٹ کو پہلے پریپیئر کیا جاتا ہے, پھر اس کی سرجری کی جاتی ہے, سرجری کے بعد اس کا 6 to 8 months کا فالو اپ کیا جاتا ہے, پھر جو ہے ایک کارنیا جو ہے وہ سکسیزفلی اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے ٹرانسپلانٹ کے بعد. تو ڈاکٹر صاحب اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے, کس طرح وہ خود کو رجسٹر کروائے, کس طرح اس کا پروسیس بھی تھوڑا بتا دیں.
थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जैसे हमारा CN/ICA ID कार्ड है उसके ऊपर एक शीट मेंशन होती है कि जब ये पेशेंट फॉथ हो जाए तो फिर इसके जो कॉर्नियाज हैं वो हम रिट्रीव कर सकते हैं जी वहाँ पे कोई भी पेशेंट जब इस तरह से कोई एक्सीडेंटल एक्सपायरी हो तो वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट होता है जो उस पेशेंट के कॉर्नियाज रिट्रीव करना हमारी ये ख्वाहिश है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में भी ये वाला शोबा फले फूले करंटली हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमने एक ऑनलाइन फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है उस पर कोई भी अगर अपनी आंखें हथिया करना चाहे तो उस पर रजिस्टर करे और उसको हमें कार्ड इशू करेंगे ऑनलाइन अल्लाह ना करे किसी भी स्टेज पे जब उनकी फैमिली में या इस तरह की सिचुएशन आई है जब वो पेशेंट की तबीयत नासाज हो तो उसके अटेंडेंट्स हमें कॉल कर सकते हैं तो हम जाके हमारी टीम उनके पास जाएगी और वो उस पेशेंट की कॉर्निया रिट्रीव करके उसको प्रिजर्व करेगी और हमारे पास तकरीबन हर वक्त 100 से 150 मरीज़ों का एक पूल होता है जिनको ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड होता है जी तो उनमें से प्रियोरिटी बेस पे जो पेशेंट ज़्यादा डिजर्विंग है उनको हम कॉल करते हैं और जो पेशेंट उसके लिए तैयार हो उसको फिर हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं सर तो ये प्लीज बता दें कि जो आप आफ्टर डेथ जो है वो कितनी देर के अंदर अंदर आफ्टर डेथ 6 to 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें कॉर्निया रिट्रीव करना चाहिए अच्छा और उसको रिट्रीव करने के बाद उसका एक स्पेशल सोल्यूशन होता है जिसमें हम उसको प्रिजर्व करते हैं और वो रिट्रीव होने के बाद 4 to 5 डेज़ के अंदर अपने रेसिपिएंट को ट्रांसप्लांट भी हो जाना चाहिए अच्छा तो ये एक फुल एक इसमें यानी कि डिपार्टमेंट्स लोग मैन पावर इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है कम्युनिकेशन बेस कि जो हम कॉर्निया रिट्रीव करें वो रिट्रीव भी टाइमली हो और जब हम उसको ट्रांसप्लांट करें तो वो ट्रांसप्लांट भी टाइम अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कुछ बच्चे जो हैं वो तो पैदाइशी होते हैं ना जी नाबीना और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है जी कि उनको जो ब्लड की सप्लाई वाली उनकी वेन्स होती हैं वो सूख गई हैं या फट गई हैं या पंक्चर हो गई हैं तो ऐसे पेशेंट्स के बारे में भी बता दें प्लीज़ कि क्या उनको भी हो सकती है उनकी ट्रांसप्लांटेशन वो इसके बारे में बताने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा आई के बारे में एक्सप्लेन करूँ कि जी। जो आई है वो अल्लाह ताला ने एक तरह से अल्लाह ताला का एक करिश्मा है जी कि इसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी वीएन में इन्वॉल्व हैं अच्छा तो एक जो पेशेंट है वो अगर बाय बर्थ उसमें ब्लाइंडनेस हो तो वो ब्लाइंडनेस की उसमें काफ़ी सारी वजूहत होती हैं अगर उस पेशेंट को कॉर्निया की वजह से ब्लाइंडनेस हो लेट से उसका कॉर्निया बाय बर्थ वो धुंधला है वो ओपेक है या पेशेंट का जो कॉर्निया वो काले मोतिये की वजह से कॉर्निकल नुमा हो गया है या उसमें धुंध पड़ गई है तो वो वाला जो अंधापन है वो हम कॉर्नियल डोनेशन से उसको करेक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई और बीमारी है पैदाइशी तौर पे लेट से उसका पर्दा डेवलप नहीं हुआ या उसे रेटिनोपैथी और प्री मेच्योरिटी है तो उस पेशेंट को अपनी मुतलका जो बीमारी है उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है जी तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो है वो डोनेशन से और वो ग्राफ्टिंग से हम उसको रिजल्ट कर सकते हैं जी तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं बराह करम ये भी बता दें कि जो आपसे रब्ता ना करें क्योंकि उनका कोई इलाज जी अगर किसी पेशेंट की जो नज़र है वो आँख की पर्दा जिसको रेटिना कहते हैं उसकी वजह से ख़राब है या काले मोती की वजह से नज़र की नस काम नहीं करती या आँख अपना पानी बनाना छोड़ गई है छोटी हो गई है उन मरीज़ों में कॉर्नियल डोनेशन जो है वो उनको फ़ायदा नहीं पहुँचेगी या वो मरीज़ जिनको ये नज़र आता हो कि उनका जो आँख का सामने वाला शीशा या पुतली है वो साफ़ है उस पर कोई धुंध नहीं है तो वो ऑर्गन अपना डोनेट कर सकते हैं लेकिन वो ऑर्गन रिसीविंग से उनको फ़ायदा नहीं हो सकता। नाज़रीन आपने हमारे डॉक्टर उसामा इकबाल साहब की बातें सुनी वो ना सिर्फ नाबीना और ब्लाइंड जो पेशेंट्स हैं उनको ऑपरेट करके उनकी सर्जरी करके उनकी बेनाई लौटा रहे हैं बल्कि वो मोटिवेशन भी कर रहे हैं अपने तय यानी ये इदारा जो है हमारा गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का शोबा इमराज चिशम जो है ये लोगों को आमादा भी कर रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आँखों के एहतियात दें ताकि आपकी आँखों से नाबीना लोग जो हैं वो दुनिया के रंग देख सकें और इसका भी आपको वैसे ही स्वाब होगा जैसे कि हम कोई सदका जारिया करते हैं तो वो उसका फिर हमें स्वाब होता रहता है यानी जब तक वो देखता रहेगा कोई दूसरा शख्स आपकी आंखों से तो आपको अल्लाह पाक उसका अजर देंगे। नाज़रीन गुजरांवाला टीचिंग हस्पताल के साबिक मोहतरम मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर फजलुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम आपको साथ लेके गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के ये जो शोबा इमराज चिशम में आए हुए हैं और आज यहाँ पे जो
सेलिब्रेशन मुनक़द हुई है जिसमें कि 150 के करीब नाबीना अफराद को बीनाई अल्लाह के करम से और इन डॉक्टर्स की मेहनत से लौटाई गई है। इसका जो पौधा है वो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में और हस्पताल में डॉक्टर फजलुर रहमान जो हैं इनके हाथों लगाया गया था। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये कार खैर जो है इसका आगाज़ कैसे हुआ। आपकी बड़ी मेहरबानी सर। ये मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी देर की ख्वाहिश थी जब हमने गुजरांवाला में हमारा हॉस्पिटल वाहिद हॉस्पिटल था जहाँ पे हमने रीनल ट्रांसप्लांट किया था, गुर्दों का ट्रांसप्लांट, और वहाँ पे हम नी ट्रांसप्लांट तो बेशुमार किए, हिप ट्रांसप्लांट बेशुमार किए, एल्बो ट्रांसप्लांट बेशुमार किए, वो तो अब कई 100 हो गए हैं वहाँ पे। आर्थोपेडिक वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो यूरोलॉजी वाले थे प्रोफेसर खालिद भट्ट साहब जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस वक्त वाले लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो हमारे प्रोफेसर थे प्रोफेसर मारूफ अजीज साहब जी, और आई डिपार्टमेंट वाले सारे लोग ये भी इस कोशिश में थे कि हम यहाँ पे कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं। वाह, तो डॉक्टर साहब इस तरह से है कि नॉर्थ अमेरिका में जो पाकिस्तान के फिजिशियंस हैं जी, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई हुई जिसे अपना कहते हैं। अच्छा, तो ये सारे पाकिस्तानी फिजिशियन हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीज़ों में सब लोगों की हेल्प करते हैं। वाह, तो एक डॉक्टर साहब जो कि गुजरांवाला के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि जी हम कॉर्निया लोगों को देते हैं, जी, तो अगर आप यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल करें तो हम आपको कॉर्निया भी दे सकते हैं। जी, तो ही इज़ वेरी काइंड कि उन्होंने हमें पहले 3 कॉर्निया दिए, और डॉक्टर साहब उससे पहले कि हमें इस चीज़ की इजाज़त मिले तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैं शुक्रिया अदा करूँ मैडम यास्मीन राशिद साहबा का, जो कि उस वक्त की हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी, ऐसा ही है, और हमारे बड़े मोहतरम और प्यारे बड़े भाई नबील अवान साहब जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ थे जी, और मेरे प्रिंसिपल प्रोफेसर मारूफ अजीज खान जी, जिनकी ये मेहनत थी। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ मैं जुल्फ़कार मोहम्मद साहब का, जो कि हमारे कमिश्नर गुजरांवाला हैं, जी, जी, और बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ मैं जनाब इमरान अहमद साहब का, जो हमारे RPO थे। वाह, इन लोगों ने, हम इनके पास जिस वक्त भी गए हैं, इन्होंने हमें हर तरह से फैसिलिटेट किया है, और हमें इन्हीं लोगों ने इसकी इजाज़त दी कि हम अपने छोटे से रिसोर्सेज में रहते हुए यहाँ पे कॉर्निया ट्रांसप्लांट करें। वाह, तो डॉक्टर साहब मुझे याद है कि कॉर्निया जब हमारे पास 3 आ गए तो डॉक्टर मलिक साहब ने मुझे, खान साहब ने कहा कि सर इसको अब इंस्ट्रूमेंट चाहिए हमें। तो मैंने पूछा कि इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा जी कि हर कॉर्निया के लिए एक डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो मैंने पूछा उसकी क्या कीमत है, तो इन्होंने कहा जी वो तो 40,000 रुपये का एक सेट है, किट आए, एक किट आई। अब हमारे पास तो पैसे नहीं थे। सर, मेरे एक दोस्त हैं उस्मान मलिक कश्मीरी साहब, ये जो नेशनल फूड वाले हैं, वाह, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कोई मसला नहीं है। उन्होंने उसी वक्त वो कंपनी जो ये इंस्ट्रूमेंट देती थी उनको पैसे दे दिए, और हमें वो सेट मिल गए, और हमने वो सक्सेसफुल 3 कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दिए। वाह, डॉक्टर साहब मैं ये समझता हूँ कि ये जो 150 कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुए हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो हमारे भाई जो लॉन साहब हैं, अहमद लोन, और उनके जो चचा हैं खालिद अजीज लोग, खालिद अजीज लोन साहब। खालिद अजीज लोन साहब का बहुत किरदार है हमारे रीनल ट्रांसप्लांट में भी, क्योंकि उन्होंने हमें थिएटर भी बनवा के दिया जी, और यूरोलॉजी को बहुत अपग्रेड करने में खालिद अजीज लोन साहब का बहुत ज़्यादा किरदार है। वाह, मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ। फिर खालिद अजीज लोन साहब ने अपने घर में एक लोगों को बुलाया, आप भी उसमें हमारे साथ ही थे। सर, तो यासिन जोया साहब जो कि श्रीलंका के आज़ादी कौंसलर हैं, जी, ही इज़ वेरी काइंड, वो तशरीफ लाए, और एक MOU साइन हो गया कि श्रीलंका से रेगुलरली जो कॉर्निया आते थे, जो पहले वो लाहौर में म्यो हॉस्पिटल में और इस तरह की चीज़ों में दे देते थे, तो उन्होंने कहा जी अब इसमें से एक हिस्सा गुजरांवाला के लिए भी रखा जाएगा। जबरदस्त, ये सारे का सारा सेरा जो है
खालिद अजीज लोन साहब को जाता है। जी तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि 150 वो लोग जिनके लिए दुनिया दे रही थी, आज वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को खूबसूरती से देखते हैं। तो ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को, जिन्होंने हर तरह की फैसिलिटी अपनी आवाम के लिए रखी हुई है, और वो फिलंथ्रोपिस्ट लोग जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम ही नहीं पता जिन्होंने इस जद्दोजहद में, इस मुश्किल में, इस सारे प्रोसेस में हमारा साथ दिया। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह पाक ने ये जो कामयाबी का सफ़र है, अल्लाह पाक के करम से ये आपने शुरू किया, और आपने बड़े मोहतरम दोस्तों के नाम भी बताए कि उस वक्त के कमिश्नर और उस वक्त के जो RPO गुजरांवाला थे, उन सब ने आपका कितना साथ दिया, और फाइनेंशियली आपके दोस्तों ने आपकी मदद की। और अभी भी चैम्बर कर रहा है, अभी भी चैम्बर कर रहा है, और श्रीलंका वाले और अपना वाले कंटिन्यूसली कार्नियाँ भेज रहे हैं। वाह। और ये सफ़र इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा, टीमें बनती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन अल्लाह की मखलूक का भला होता रहेगा, और ये जो सफ़र है इंशाल्लाह जारी रहेगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप माशाल्लाह एक बड़े डॉक्टर तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इदराक है मजहबी हवाले से भी। तो ये कुछ लोग जो कहते हैं कि पार्ट्स जो हैं बॉडी के ये डोनेट नहीं करने चाहिए, ये इस्लामी हवाले से क्या ये जायज़ है? सर देखिए, ब्लड जो है वो भी एक हमारा बॉडी का पार्ट है। तो आपने देखा है कि रोज़ाना कितनी ट्रांसफ्यूजन होती है, हाँ और कितने लोगों की जान बचती है। माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब ये जो कॉर्निया आपने देखा है 150 लोग जिनको दुनिया में अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता, अब वो अल्लाह के घर को देखेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा को देखेंगे, कुरान पाक को देखेंगे, फूलों को देखेंगे, तो दुनिया के रंग देखेंगे। दुनिया के रंग का मतलब है अल्लाह की कुदरत को देखेंगे। तो मुझे याद है जब मैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो जो मेरे रूममेट थे मियाँ साहब, वो रीडो के प्रेसिडेंट थे। रीडो है रावलपिंडी आई डोनर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक दिन वो थोड़ा लेट हो गए, तो मैंने पूछा मियाँ साहब आप आज थोड़ा लेट आए हैं? तो उन्होंने कहा जी कि हम प्रेसिडेंसी हाउस गए हुए थे, और ज़ियाउल हक साहब ने आज हमें अपनी दोनों आंखें जो हैं वो डोनेट कर दी। तो बहुत बहुत बड़े लोग हैं दुनिया में जो ये डोनेशन करते हैं सर। तो रावलपिंडी में मैं मियाँ साहब से ये मैंने देखा है कि अर्ली मॉर्निंग मियाँ साहब जाते थे सुबह 4 बजे। उस ज़माने में फांसी का हुक्म हो जाता था, अब तो मेरे ख्याल नहीं होता। तो बहुत सारे लोग जिनको फांसी का हुक्म होता था, 2 दिन पहले हम जाके उनको मोटिवेट करते थे। तो डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग जो हैं, ऑलमोस्ट 99% लोग अपनी आंखें डोनेट कर देते थे, और यही बात कहते थे कि खुदा के वास्ते मेरी आंखें किसी नबीना हाफिज को लगाएं, क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में क्या गलती की है जो अब मैं तख्तादार पे जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे बंदे को मेरी आंख लग जाए कि वो कुरान पाक को पढ़े। माशाल्लाह माशाल्लाह। ताकि इसी तरह अल्लाह पाक मुझ पे राजी हो जाए, माफ़ी मिले, मुझे माफ़ी। वाह। तो ये हमारे चूँकि यहाँ पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। वैसे तो जब हम लोगों को मोटिवेशन के लिए जाते थे तो हमारे पास अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के जामिया अल-अज़हर फतवे थे, जो मुफ्ती थे जामिया अल-अज़हर के, उन्होंने ये फतवा दिया हुआ है कि आप डोनेट कर सकते। आपको डॉक्टर साहब क्योंकि आप इसके पायनियर हैं, आपको दिली मुबारकबाद हम पेश करते हैं, और आपको भी जनाब सलूट करते हैं। आपने इतना एक अच्छा अजीम कार खैर जो है वो गुजरांवाला में शुरू किया। प्यारे नाज़रीन, कैसी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने। ये किस कदर आप देखें कि ज़हनी, रूहानी और दिली तस्कीन की बात है डॉक्टर साहब के लिए भी और हमारे लिए भी, कि इस किस्म के अल्लाह पाक के नेक बंदे आज भी हर शोबा में मौजूद हैं। देखें डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि पहले सिर्फ 3 कार्नियाज हमें आए थे डोनेशन में, तो वहाँ से हमने ये स्टार्ट किया। आज माशाल्लाह जो तकरीब हम मना रहे हैं जिसमें हम शिरकत के लिए आए हुए हैं, आप भी हमारे साथ हैं, 150
جو ہے نا جی اس کی تعداد آج مکمل ہو گئی ہے، یعنی 150 ٹوٹلی بلائنڈ لوگ جو ہیں وہ اب الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے کرم سے اور ڈاکٹر صاحب جیسے پیارے لوگوں کی مہربانیوں سے۔ میں گزارش کروں گا آخر میں کہ ہمیں بھی، ہم جو پاکستانی لوگ ہیں، ہمیں بھی مختلف باڈی پارٹس جو ہیں انہیں ڈونیٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے مرنے کے بعد کوئی شخص ہماری آنکھوں سے یہ دنیا دیکھ پائے تو کس قدر بڑا ثواب ہے ہمارے لیے، اور پیارے نبی پاک اور ہمارے اللہ پاک کس قدر خوش ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے آپ سے اجازت۔ لو یار حوالے رکھ دے تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک خوشی جس دن پھر ملیں گے، رب رکھا تے اللہ بھی۔ او چل مینوں چلی رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نوں چلیے، او رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نوں چلیے، ملا کٹ کڑ دے وٹ میں چل میلے نوں چلیے، ہائے چل